So good morning and Jai Hind everybody. We are discussing NCERT exercise 10.3. If you must be remembering, yesterday we have discussed the questions from 2 and 3, where we have to find out the area from the figures which were rectangle and square. Okay. Now we have to see from question number, I think ninth I am taking now. Question number ninth we are going to start with. Question number ninth is 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of remaining part of the land? Okay. Now let us understand question में बोल क्या रहा है बेटा. Question number 9 is telling that you have a piece of land. हमने माना सपोज आपका piece of land ये है, ठीक है. The dimensions are given 5 meter long, 4 meter wide, and this is the piece of land. ठीक है. It is telling from this piece of land 5 square flower buds, each of side 1 meter, are dug. मतलब डग मतलब होता है बेटा खोदना, खोदना या निकालना आप बोल सकते हो. इस तरीके के स्क्वायर शेप के 5 बर्ड्स जो है वो फ्लावर बेड्स जो है वो हटाए गए हैं. ठीक है. एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया आपके पास. नाउ सपोज 4 ये हो गया एंड सपोज 5 आपका ये हो गया. ठीक है. 1 2 3 4 एंड 5. नाउ इट इज टेलिंग कि अगर आपके पास इतना पीस ऑफ लैंड था और आपने उसमें से इतने फ्लावर बेड्स निकाल लिए, तो हाउ मच लैंड इज लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स दिस पोर्शन यू हैव टू टेक आउट. ये जो बचा हुआ वाला पोर्शन है, यू हैव टू टेक आउट दैट. सो व्हाट विल यू डू फॉर इट? फर्स्ट टेक आउट द एरिया ऑफ द आउटर लैंड, जिसमें से उसको निकाला गया है बेटा. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल टेक आउट द एरिया ऑफ लैंड. सो फर्स्ट आई एम टेकिंग एरिया ऑफ लैंड. नाउ यू कैन सी द लैंड इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल. ओके. सो द फॉर्मूला विल गो एज लेंथ इंटू ब्रेथ. So length into breadth means 5 into 4, which will give us 20 square meter. I hope it is clear now. Yes or no? Please reply. Please reply yes or no. Is it clear? The area of the land which we have taken in outer face. Okay. Thank you, Manya, for replying. Okay. Now move on to the square beds which is inside. अब हम बात कर रहे हैं इन portions की, that all 5 which is given inside. So what we will do? All are of same shape बेटा, and अगर हम 1 का एरिया निकालें और 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इन पूरे 5 का एरिया मिल जाएगा. ठीक है. So what we are going to do? We are taking out the area of 5 square flower beds. So what we will do? 5, because you are taking 5 squares are there, into area of a square. What is the formula of area of square? Side into side. So you will write it down here, side into side, S into S. Okay. Then it will give us 5 into side was what is given? It was given 1 meter side of each. सबके सब 1 meter के हैं बेटा. So here it will be 1 into 1. So here you will get it 5 square meter. Now you can see each of its area is 1 square meter. Now it is telling कि अगर इस पोर्शन को डिग करके निकाल लिया गया, so कितना लैंड बचा हुआ है? It means left out portion. So left out portion, how will you take out? You will take out left out land is total was 20 minus 5.
answer will become 15 square meter. This is the answer for this particular question. Please mention it on your fair copy. Students, remember now we are discussing the second pattern of the question, which is tiling. What do you know by tiling? You must be knowing. हम लोग जिस भी घर में रहते हैं, जनरली हम सभी लोगों के घर में जहां पर हम बैठे हुए हैं, जिस फ्लोर पे अभी हम बैठे हुए हैं, that floor is occupied with the tiles. Some of the homes are having the marbles. Some of the homes are having the tiles. Okay. Right now, can you please write it down? How many of you are knowing that on your floor tiles are there or the marbles are there? If tiles are there, write it down tiles. If marbles are there, you write it down marbles. Okay, many of you are writing tiles. Great. So right now, if I tell you that, can you please count how many tiles are there on your floor? फटाफट से leave your place where you are sitting right now. Count how many tiles are there in your room where you are sitting. जिस रूम में अभी आप बैठे हुए हैं, can you count how many tiles are there? फटाफट से ट्राई करिए, सोच कर बताइए how many tiles are there. I am giving you 2 minutes. How many tiles are there? Think of it and reply to me fast. I think you all have checked out your room where you are sitting and you have counted the tiles and you have written. अब suppose if I tell you that you are having a room constructed, ठीक है? अभी तो आपने count करके मुझे बता दिया that ma'am these many tiles will be required. But suppose if the question is there from my side, आपके पास एक रूम है, ठीक है, एक हॉल है, अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ तुरंत, ठीक है? अब आपके पापा ने सोचा उस रूम में अभी नॉर्मल फर्श है, ठीक है? अब आपके पापा ने सोचा इस रूम में हम क्या करते हैं, टाइल्सिंग लगवा देते हैं. टाइल्सिंग मतलब पूरे रूम में हम टाइल्स लगवाते हैं, ठीक है? अब इस बार आपको अपना मैथमेटिकल दिमाग यूज करना है और बताना है अपने पापा को खुद से कि पापा इतनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी और इतनी ही टाइल्स लगेंगी. ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको आज हम सिखाएंगे खुद से, ठीक है? आपको क्या करना है, अपने पापा को आप खुद ही बता पाएंगे कितनी टाइल्स घर में लगने वाली है, ठीक है? सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन बाय योर ओन वे एंड आप पापा को बताओगे पापा इतनी साइज की अगर आप टाइल्स लेंगे तो 20 लगेंगी कि 30 लगेंगी. अगर आपकी साइज इतनी होती है तो कितनी लगेंगी रूम में टाइल्स. अगर आपकी टाइल्स स्क्वायर शेप की है तो कितनी लगेंगी, रेक्टेंगल शेप की है तो कितने लगेंगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे निकाला जाता है कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी जरूरत पड़ेगी. सो फॉर दैट व्हाट वी डू, रिमेंबर ऑलवेज वन फॉर्मूला, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड मतलब हमें कितने की जरूरत है. सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर मतलब जिस रूम में, जिस हॉल में, जिस जगह पर आपको लगाना है टाइल्स, उस जगह का एरिया, ठीक है? अगर आपको फ्लोर में लगाना है तो फ्लोर का एरिया, हॉल के फ्लोर में लगाना है तो हॉल के फ्लोर का एरिया, ठीक है? जिस भी जगह पर आपको टाइल्स लगानी है उस जगह का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है? अब वन टाइल मीन्स जिस टाइल्स को आप लगाना चाहते हैं. सपोज आपके पास स्क्वायर टाइल है तो आप स्क्वायर टाइल का एरिया निकाल लीजिए वन टाइल का. अगर आपके पास रेक्टेंगल टाइल है तो आप रेक्टेंगल टाइल का एरिया निकाल लीजिए एंड डिवाइड इट. व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट द आंसर हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड. अब आप चाहें तो अपने रूम का एरिया निकाल करके अपनी टाइल्स जो भी आपने बताई है मुझे वो भी आप निकाल सकते हो. सो आज आप लोग मुझे ये करके बताएंगे, पहले तो हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है? सपोज अब नाउ यू टेल मी, सपोज आई हैव अ रूम. ऑल ऑफ यू प्लीज सॉल्व इट. आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन टू सॉल्व.
Please find out how many tiles will be required, because this is my bedroom. Suppose this is my bedroom. I want my floor of bedroom should be covered with the help of tiles. Okay, tiles are square in shape. ठीक है, tiles are square in shape. सबसे पहले रूम का मेजरमेंट बताते हैं. रूम का मेजरमेंट है आपके पास 20 meter from this side, sorry 50 meter from this side and 20 meter from this side. This is my room's dimension. Okay, room is rectangular, इसलिए उसका जो floor है वो भी rectangular है बेटा. Now dimension of my floor is this 20 meter by 50 meter or 50 meter by 20 meter. Now the tiles जो हम इसमें लगाने वाले हैं उस tiles का dimension है, that is in the form of rectangle भी ले सकते हैं, square भी ले सकते हैं, and the dimension is 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter. It is square. Okay. Now think of it and tell me how many tiles will be required for covering my floor of bedroom. Think of it. I have told you the formula. आपको एरिया निकालना भी आता है. फटाफट से दिमाग लगाइए and tell me what answer will I get. Think of it. Take 2 minutes. फटाफट से निकालिए. सबसे पहले we will find out the area of floor. ठीक है, area of floor. Area of floor कैसे निकलेगा? That is area of floor मतलब length into breadth. Why length into breadth? Because मेरा जो room है वो rectangle shape का है ना? So यहाँ पर आ जाएगा 20 multiply by 50. ठीक है, area ऐसे ही निकालेंगे length into breadth करके. Yes, Aditya, I can see your answer. Let me check that whether it is right or not. Second thing, area of one tile. One tile is in shape of square. So square का area होता है बेटा side into side means 2 into 2. Okay. Now let us see that. जब हम ऊपर multiply करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2s are 10. 00 will come more. Divided by 2 into 2 which will give us 4. Now 1000 divided by 4, what will come? Can you please tell me? 1000 divided by 4, what should be the answer? 1000 divided by 4. Yes, the answer will come 250. 250 means इस फ्लोर में टोटल 250 टाइल्स लगेंगी. ठीक है, अब अगर सोचो, अब आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीबडी, अगर मुझे 250 टाइल्स नहीं लगानी है, मैं चाहती हूँ कि नंबर ऑफ टाइल्स कम लगे. ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कम लगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? What do you suggest? 250 is a big number of tiles, है ना? अगर मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ टाइल्स कम लगनी चाहिए, फॉर दैट what I should do? क्योंकि रूम का फ्लोर तो हम चेंज नहीं कर सकते है ना, बिकॉज रूम इज फिक्स्ड. रूम आई कैन नॉट चेंज, बट आई कैन चेंज द साइज ऑफ टाइल, है ना? आई कैन चेंज द साइज ऑफ टाइल. अगर टाइल मेरी बड़ी होगी, यस, अगर टाइल का एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ टाइल्स कम लगेंगी, है ना? यस, वी कैन चेंज द साइज ऑफ टाइल. मतलब इस स्क्वायर की जगह, ये जो 2 मीटर का स्क्वायर हमने लिया है, इस टाइल की जगह हम मार्केट में और टाइल्स देख सकते हैं जो कि टाइल्स का साइज जिसमें बड़ा हो. जैसे टाइल्स का साइज बड़ा होगा, हमारा नंबर ऑफ टाइल्स कम हो जाएगा. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, बिकॉज ऑफ दिस आई एम चेंजिंग. नाउ मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स बहुत ज्यादा लग रही थी. तो इस बार मैंने बोला कि मैं ये वाले टाइल्स नहीं लगाऊंगी. आई विल बी चेंजिंग माई टाइल्स एंड दिस टाइम द डायमेंशन ऑफ टाइल्स इज tell me faster now. This time the dimension is 20 and 5.
Tell me faster. Dimension. I have increased the size of tiles. Now tell me how many tiles will be required. Very good. I have started getting the answer from you all. देखो कितनी जल्दी आंसर चेंज हुआ ना बेटा. एंड डायरेक्ट 250 से आंसर कितना छोटा हो गया. इट मीन्स हमने टाइल्स के साइज को बड़ा किया, और जैसे ही हमने टाइल्स के साइज को बड़ा किया हमने देखा कि नंबर ऑफ टाइल्स कम हो गए, है ना. नंबर ऑफ टाइल्स कितना आएगा? 10. क्यों आएगा 10 बेटा? बिकॉज यहाँ पर इस बार चेंज हो जाएगा. क्या चेंज होगा? लुक एट योर फ्लोर का एरिया वही रहेगा. दिस इज नाउ चेंज. टाइल्स का एरिया विल बिकम चेंज. सो टाइल्स भी क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया. सो 20 into 5, है ना. सो विच विल गिव यू 1000 upon 100, और आंसर आ जाएगा 10 tiles. So look at here the question thoroughly. हमारे पास जब टाइल्स कम साइज की थी तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स ज्यादा लग रही थी. जैसे हमने टाइल के साइज को बड़ा कर दिया हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स क्या लगने लगी? कम लगने लगी. सो रिमेंबर, अगर हमें ज्यादा टाइल्स लगवानी है तो हम टाइल का साइज छोटा ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें कम टाइल्स लगवानी है तो हम क्या कर सकते हैं? टाइल के साइज को बड़ा ले सकते हैं. डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे टाइल्स की परचेजिंग करते हैं, है ना. हमें कैसी टाइल्स पसंद आती है. So this is all about tiling the floor. Remember, it's an extremely important question, how to tile the floor. Okay. So please complete 10.3 on your maths copy. I have sent you one recording as well, which is based on question number 9, 10, 11, 12, and also 6, 7th, 8th as well. So please watch those recordings. Ask me tomorrow if you have any question. If you will not have any question, we will start COMET tomorrow for sure, and we will also complete the COMET tomorrow for sure only. Okay, because from Monday we'll start new chapter, symmetry. So thank you very much everyone. Jai Hind all of you.